to all our viewers who are watching Project Talk webinar by Prop Tiger, where we connect our home buyers with the best in the industry. I am Surabhi Gupta, your host, and today we are joined by Honest Universal Group. I would like to welcome Mr. Sunil Gupta, MD, Mr. Sandeep Keria, Director Finance, and Mr. Vibhu Kasture, VP Sales. From Prop Tiger, we are joined by Nitin Gautam, Regional Business Head. Warm welcome to all our panelists. Now, Honest Universal Group has been synonymous to affordable housing in Mumbai metropolitan region. The company lays emphasis on ethics, professionalism, and customer centricity, and adheres to top-class quality in all its residential and commercial projects. Prop Tiger is India's leading real estate advisory firm to have served more than 25,000 home buyers throughout their journey at zero brokerage for customers. May I request Team Honest and Mr. Gautam to go ahead with a brief introduction of the companies that they are representing. Starting with you, Mr. Gautam. Sure. Hi, everybody. So PropTiger is a group company of the Elara Technology. Elara Technology is a firm which owns PropTiger.com, Housing.com, and Makaan. PropTiger was, started its operation in the year 2011. और 2011 से लेकर 2020 तक हमने 25,000 से ज्यादा कस्टमर्स, सेटिस्फाइड कस्टमर्स को उनका घर दिलवाने का जो डिसीजन है उसमें हेल्प की. घर दिलवाना is only one part of the business. Along with this, we have helped the clients in getting the home loans. We take the entire paperwork. We ensure that the clients are not hassled with the entire process. Also, we have a team of dedicated relationship managers who assist the client once the transaction is done to the time that the builder buyer agreement is there, because there are a lot of times जब buyer को थोड़ा सा guidance चाहिए होता है, clients चाहते हैं कोई उनके लिए थोड़ा सा developer से बात करे, थोड़ा सा negotiate करे, इन सारी चीजों में Prop Tiger help करता है. I would request somebody from Team Honest to please introduce the company. Welcome everyone. मेरा नाम संदीप केडिया, मैं ऑर्नेट में फाइनेंस देखता हूँ. तो ये जो टर्म ऑर्नेट है, जब हमने इसका नाम रखा था तो ऑर्नेट का मतलब होता है समथिंग ब्यूटीफुल, समथिंग एलिगेंट. तो लास्ट 10 सालों में हमारी यही कोशिश रही है कि हम लोगों को एक अच्छा घर दे पाए, एक अफोर्डेबल घर दे पाए और एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से लोगों को उनका घर दे पाए. लास्ट 10 सालों में कंपनी ने 700 से ज्यादा घर की डिलीवरी करी है और सब सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं. 6 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और सब टाइम पर डिलीवरी हो पाई है. और हम लोगों का बेसिक फोटे अफोर्डेबल हाउसिंग रहा है. हमने अफोर्डेबल हाउसिंग वसई, नाला सुपारा, नायगांव, न्यू बॉम्बे, भिवंडी और कांदिवली, सांता क्रूज, यहाँ पे सब डिलीवर करी है. तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ इस वेबिनार पे. Thank you, sir. Before we begin, let me show you why Vasai continue to enjoy buyers' attention over the years. Here's a video for all our viewers. Mumbai is a multicultural, cosmopolitan, welcoming, and an enterprising city. The city rises at the crack of dawn and doesn't sleep until well into the night. Vasai is an area in Palghar district of the city Mumbai. Vasai is more popularly known as Vasai Virar town. It is not only one of the renowned coveted residential areas in Mumbai today, but also an important commercial area for its excellent connectivity with the other areas. There are several landmarks in Vasai like Fort Bassein, Suruchi Beach, Our Lady of Grace Cathedral, Infant Jesus Church, etc. Several reputed developers are constructing residential and commercial complexes, and thus the Vasai real estate is developing at a fast rate. There has been rapid development in this area, and for its connectivity with other areas and for its expanding rapid social infrastructure, the locality is growing at a fast rate. The price trends are increasing, but the demand is also high because of the high rate of population. The real estate developers are also investing for projects in this locality.
One such reputed developer is Ornate Universal. Right since our inception in 2010, Ornate Universal have explored the possibilities where no construction firm has gone, therefore achieving customer loyalty by delivering marquee properties. Within a short span of 10 years, Ornate has successfully developed over 500,000 square feet of development in and around Mumbai, with a further million square feet development in various stages of planning. One such marquee project is Ornate Heights. Situated at Vasai East, Ornate Heights is a residential development launched by Ornate Universal. This project provides a vast range of amenities including children's play area, stormwater drains, solid waste management and disposal, landscape and tree planting, and fire protection and fire safety requirements. Prominent suburbs of Vasai are close by, and with several schools, hospitals, banks, and offices situated in the proximity, the project is a preferred choice for home seekers. In the chaos that we live in, we always look for an escape hideaway. Imagine getting a home and an escape at the same place. This is what Ornate Heights in Vasai has to offer. That was truly a sight to behold. Now let's get some to question answers. Mr. Sandeep, my question is for you. Tell us, how is Vasai as an investment destination, and what is the scope of development like? जो वसई का जो नाम है वो संस्कृत वर्ड वास से लिया हुआ है। वास का मतलब है रहना। तो वसई हमेशा से ही एक रहने लायक डेस्टिनेशन था, है और रहेगा। वसई वेस्टर्न सबर्ब्स में वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल है, ट्रेन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, स्कूल्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो यहाँ पे अब आज इसका इम्पोर्टेंस देखते हुए वेस्टर्न रेलवे की बहुत सारी ट्रेन आज की डेट में यहाँ से ओरिजिनेट होनी शुरू हो गई हैं, बहुत सारी ट्रेन यहाँ पे खत्म होती है। आगे जाके वसई जो स्टेशन है उसको एक मल्टी नोडल हब टाइप बनाने की कोशिश हो रही है, जहाँ से आउट स्टेशन ट्रेन भी शुरू होगी। आउट स्टेशन ट्रेन आज कम रुकती हैं, कल आके और बहुत सारी रुकने वाली हैं। जो वसई विरार वसई अलीबाग का जो कॉरिडोर है उसके ऊपर भी काम चालू हो गया है। आज की डेट में यहाँ से क्या शटल ट्रेनें चलती हैं, तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट का आ गया है कि भाई इसके ऊपर अब हम नॉर्मल लोकल ट्रेन चलाएंगे। तो वसई से न्यू मुंबई, पनवेल, रोहा, अलीबाग तक की कनेक्टिविटी भी बहुत बेटर हो जाएगी। फिर मेट्रो रेलवे भी प्रपोज्ड है आज की डेट में वसई के अंदर। तो मुझे लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर हिसाब से, लोगों के रहने के हिसाब से और जो सुख सुविधा चाहिए रहने के लिए, वो सब आज वसई में रेडीली अवेलेबल है। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो जो वसई के पहले अपन मीरा रोड, बैंदर जो एरिया देखते हैं अपन, आज वहाँ पे कारपेट का भाव हो गया है 15,000 16,000 रुपया स्क्वायर फीट। आप थाने ले लीजिए, थाने का भी भाव 15,000 16,000 हो गया है। नवी मुंबई ले लीजिए, वहाँ भी यही भाव चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक लाइफस्टाइल जीने के लिए और एक सुख सुविधा के हिसाब से वसई जैसा लोकेशन आपको मिलना नहीं है। और आगे जाके आज जो मीरा बैंदर है वही 5 साल में मैं वसई को होते देख रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से तो वसई बहुत ही अच्छा एक रहने लायक जगह भी है और एक इन्वेस्ट करने लायक जगह भी। Thank you. Mr. Vaibhav, my next question is for you. Can you tell us about the USPs of Ornate Heights and what do you think will appeal to home buyers? सी आज की डेट में कोई भी प्रोजेक्ट जहाँ पे बॉम्बे में डेवलप होता है तो उस प्रोजेक्ट में 3-4 चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला एक रोल प्ले करती है। जहाँ पे बेसिकली हम लोग कोई प्रोजेक्ट देखते हैं तो वहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी प्रोजेक्ट में आपको इंफ्रा इंपॉर्टेंट है, जो इंफ्रा रेडी होना चाहिए। सेकंड, उस प्रोजेक्ट के अंदर उसका जो एरियाज है वो एरिया किस तरीके से दिया गया है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस उस प्रोजेक्ट में जो एमिनिटीज दी हुई है वो एमिनिटीज किस तरीके से डिजाइन की है और दी है वो। और चौथा होता है कि उसकी प्राइसिंग कैसी दी हुई है। अगर आप ऑर्नेट हाइट्स के बारे में अगर देखते हैं तो ऑर्नेट हाइट्स एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि जहाँ पे हमने ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया और बना रहे हैं, वहाँ का इंफ्रा ऑलमोस्ट इज रेडी। यू हैव ऑल द रोड inside the entire complex is ready. 90 feet के internal roads ready है,
वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम्स रेडी है, वहाँ के इलेक्ट्रिक पोल्स लग चुके हैं, तो वहाँ इंफ्रा रेडी हो चुका है। दूसरा बात आती है कि उस प्रोजेक्ट को जो डिजाइन किया गया है, उस प्रोजेक्ट का जो एम्यूनिटीज डिजाइन की गई है, तो उस प्रोजेक्ट को जहाँ पे हमने डिजाइन किया है कि वहाँ मेरा हर फ्लैट का एरिया जो है, जिसको हम लोगों ने जीरो वेस्टेज फ्लैट हम लोग बोलते हैं उसको, बिकॉज इस फ्लैट का अगर आप एरिया देखते हैं तो जहाँ मैक्सिमम कारपेट हमने दिया हुआ है, और कहीं पे भी आप अगर घर को डिजाइन किया उस 1 BHK के लेआउट को आप देखते हैं या 2 BHK के लेआउट को देखते हैं, तो कहीं पे भी मेजोरिटी बाकी जगह पे ये देखा जाता है कि पैसेज बड़ी बड़ी दी जाती है, जिसका कारण बहुत सारा घर में जगह वेस्टेज हो जाता है, जिसका आपको पैसे तो लगते हैं कस्टमर्स को देने के लिए, लेकिन यूज में उतना जगह नहीं आता है। जहाँ पे अगर आपने इस लेआउट को अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको मैक्सिमम कारपेट यूज करने को मिलेगा, और जिसको हम लोग जीरो वेस्टेज फ्लैट बोलते हैं, जो हमारा आज की डेट में सबसे बड़ा यूएसपी है हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसमें, और ये सबसे लोगों का और कस्टमर्स का इस पे मैक्सिमम हमको रिस्पांस मिला हुआ है कि ये लेआउट सबको अच्छे से पसंद आया हुआ है। थर्ड थिंग है, इस प्रोजेक्ट में जो हमने एम्यूनिटीज दी हुई है, आज जिस लेआउट को हमने डिजाइन किया है, और वसई जैसे लोकेशन पे जहाँ पे आज एक वहां पे आने वाला हर बायर ये चाहता है कि मेरे को एक अच्छी लाइफस्टाइल मिले, और मेरा कॉम्प्लेक्स में वो सारी एक सुविधा हो जिसमें मेरी फैमिली और मैं और मेरे पेरेंट्स सब लोग यूज कर सके। जहाँ पे हमने बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक गार्डन दिया है, चिल्ड्रन पे एरिया दिया है, हमने सीनियर सिटीजन के लिए वहाँ पे एरिया दिया हुआ है जहाँ पे सीनियर सिटीजन आके बैठ सकते हैं, हमने जॉगिंग ट्रैक दिया हुआ है, हमने बच्चों के लिए क्रिकेट की एक नेट बना के दी है, और वहाँ एक ऐसा जिम बनाया है जहाँ पे आजकल वहाँ जो आने वाला मेरा क्राउड है, मेजोरिटी इज यंग क्राउड, एवरीबडी वांट्स टू बी फिट, तो उन लोगों के लिए वहाँ एक जिम बना के दिया है। एंड एज वेल एज वी हैव क्रिएटेड अ टेरेस जॉगिंग ट्रैक ऑन द बिल्डिंग, तो जहाँ लोगों को ऊपर जाके टेरेस पे भी एक खुली हवा में अपना जॉगिंग ट्रैक पे वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। और अगर आप देखते हैं सबसे फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज द प्राइसिंग। आप अगर ऑर्नेट्स की अगर हाइट्स की अगर बात करते हैं तो वहां पे हमने जो प्राइसिंग प्लान किया वो मार्केट में आजू बाजू में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस प्रोजेक्ट में अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ की जो हमने प्राइसिंग की है वो बहुत ही रीजनेबली प्लान की हुई है। तो दिस इज ऑल व्हाट अबाउट द प्रोजेक्ट्स। Mr. Sunil, would you like to take this? What is about Vasai that drives people to buy a home here? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। वसई जो लोगों के दिमाग में जो बैठा हुआ है कि वसई में इनलीगल बिल्डिंगें बनती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब था, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, पानी की प्रॉब्लम थी, वो आज की सिचुएशन में वैसे रही नहीं है। इनलीगल बिल्डिंगें बनने बंद हो गई है, कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, सेल्फ सस्टेन्ड है, जैसा वैभव जी ने बताया, जैसा संदीप जी ने बताया कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जिस तरीके की रोड्स बन रही है, जिस तरीके के इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे पढ़ाई के लिए, जैसे स्कूल्स है, कॉन्वेंट स्कूल्स है, अपने कॉलेजेस है, आप देखिए यंग क्राउड के लिए पब्स, रेस्टोरेंट्स है, आप देखेंगे हर गाड़ी के जो भी ब्रांडेड गाड़ी है उसके बड़े बड़े शोरूम्स खुल गए हैं। तो वसई एक सबब नहीं रहा है, एक डेवलपिंग सबब बनते जा रहा है। दूसरी, पानी की दिक्कत अभी है नहीं, वीवीएमसी फुल पानी दे रही है, हर प्रोजेक्ट में पानी दे रही है। इलेक्ट्रिसिटी की पहले बहुत दिक्कत थी, अभी कोई दिक्कत नहीं रही है। तो वसई में जैसे पहले सिर्फ 7 माले की बिल्डिंगें बनती थी, अभी 15 फ्लोर्स की बिल्डिंगें बनने लग गई है, क्योंकि वहां पे फायर ब्रिगेड की बहुत अच्छी सुविधा आ गई है। दे कैन वो वहां पे वो सब जो डिजास्टर कंट्रोल मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया से हो रहा है। तो हमने ये देखा है कि जैसे मीरा रोड, भाईंदर, जैसे एक टाइम पे बहुत बोलते थे कि लोकेशन बहुत वीक लोकेशन थी, और आज की तारीख में बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हो गया है। मैं वसई को वही नजर से देख रहा हूँ नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में कि ये एप्रिसिएशन वाइज बहुत आगे निकलेगा, क्योंकि वेस्टर्न बेल्ट में यही एक जगह बची है जिसका अभी होना है पूरा प्रोग्रेस। इसके लिए वसई में अगर लोग फ्लैट्स लेते हैं तो उनको बहुत अच्छा फैसिलिटीज और सुविधा मिल सकती है।
सर आप ये बताएंगे कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है और कौन सी एज ग्रुप के लोग हैं जो वसई में अभी फिलहाल प्रॉपर्टी बाय करना प्रेफर कर रहे हैं? मैं ये कहूंगा कि हर एज ग्रुप के लिए यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। जैसे कि अगर मैंने जैसे पहले बताया कि रेस्टोरेंट्स है, पब्स है, मल्टीप्लेक्सेस है, शॉपिंग्स के लिए वो है, आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, तो सुविधा के लिए तो सारी चीज है। अभी जैसे एक ओल्ड एज का आदमी के लिए मेडिकल फैसिलिटी होनी बहुत जरूरी है, तो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स है जो 2-3 किलोमीटर के रेंज में ये हमारे प्रोजेक्ट है। कॉलेजेस है जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, स्कूल्स है, कॉन्वेंट स्कूल्स है। फिर आप एक आदमी को जो सुविधा चाहिए वो सारी चीज अवेलेबल है वसई में। प्लस वसई की जो जेंट्री है वो बिजनेस क्लास है। अगर आप मैंने नोटिस किया है कि एक एसी ट्रेन जो चलती है रेलवे, उसमें सबसे ज्यादा एसी ट्रेन में ट्रेवल करने वाले वसई से चढ़ते हैं। तो वसई का खुद का एक डेवलपमेंट इस तरीके से हो रखा है कि हर एज का बंदा इसमें रह सकता है और उसके लिए फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह है। Mr. Vaibhav, could you throw some light on available units and the sizes available at Hornet Heights? सी, हम लोगों ने जहाँ पे ये बिल्डिंग को डिजाइन किया है, डिजाइन करते समय हमने बहुत ही माइन्यूटली एक चीज जो मैंने आपको पहले भी मेंशन की वो देखी थी कारपेट की, कि पब्लिक को मैक्सिमम यूजेबल स्पेस कैसे मिल पाए। और उस लोकेशन पे जहाँ पे आज अगर आपने देखा होगा पिछले 1-1.5-2 सालों में ये ट्रेंड आ गया कि नहीं, छोटा छोटा प्राइस को छोटा करने के लिए घर को एकदम छोटा बना के उसको 300 350 स्क्वायर फीट के ऐसे सब छोटे घर बनने चालू हो गए थे। और इसके कारण लोगों को लगने लगा कि खाली मुझे प्राइस में बेनिफिट्स मिल रहा है। वी हैव प्लान्ड हियर द 1 BHK एंड 2 BHK काइंड ऑफ अपार्टमेंट। और जहाँ पे 1 BHK का मेरा यूजेबल कारपेट इज 446 एंड 464 is the highest one. So these are the kind of areas we have created for 1 BHK, and for the 2 BHK 633 and 639 जो आज के डेट में पहले किसी जमाने में मिलता था, अभी इस तरीके के एरियाज नहीं मिल रहे हैं जो हमने यहाँ पे बनाए हुए। Moving on to our next segment, I would like to request Team Hornet to walk us through the project presentation for the benefit of our viewers. सी, अगर आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, दिस इज द building elevation. Now, see, if important is that this is a welcome to वसई। वसई एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे आज आपको रहने के लिए एक मजा आएगा और लोग यहाँ पे रह रहे हैं। वसई आज वेस्टर्न सबअर्ब का सबसे एक प्रोमिनेंट रेजिडेंशियल एड्रेस करके माना जाता है। इफ यू लुक एट आफ्टर मीरा रोड एंड भाईंदर, आज पब्लिक भाईंदर के बाद अगर कहीं सोचती है रहने के लिए, तो कोई भी पहले सोचता था कि नहीं मैं विरार इधर सब जगह जाऊं, नायगांव जाऊं, कहीं जाऊं, लेकिन आज लोग फिर भी यही देखते हैं कि वसई इज द ओनली प्लेस जहाँ पे वो लोग रह सकते हैं। और यहाँ जो इंफ्रा का जो डेवलपमेंट हो रहा है जिस तरीके से, अगर आप देखते हैं सब तरफ ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, एसी ट्रेन, रोड का वाइडनिंग होना चालू है। वहाँ आज आपको लोकल ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी चालू हो गई है। वहाँ आपको वसई के अपना खुद का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लोकल बसेस चालू कर दी है। दूसरा, आपको आज के डेट में एक एडवांटेज है, यहाँ पे एक वाटर वे भी तैयार होने का चल रहा है, दैट प्रपोजल इज ऑलरेडी बीन पास्ड, जिसमें आपका सीधा आप वर्सोवा से लेके पूरा वसई तक आप थ्रू द सी रूट आप ट्रेवल कर सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा आज के डेट में वसई में एडवांटेज है और ये सब चीजें वसई को आगे लेके जाने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अगर आप देखते हैं मेट्रो का भी प्लान वहां चालू है, वहां एक ब्रिज आ रहा है, जो ये ब्रिज आपको भाईंदर को और
वसई को कनेक्ट करेगा। बेसिकली आज भाईंदर का जो प्राइस पॉइंट अगर आप देखते हैं और भाईंदर के कंपेयर में अगर आप वसई देखते हैं, तो वसई और भाईंदर का जैसे ही वो ब्रिज रेडी हो जाता है तो वो प्राइस का पॉइंट दोनों में से निकल जाएगा और आपका और भाईंदर और वसई का प्राइस ही एक हो जाएगा। अगर आप आजू बाजू में अपना जो प्रोजेक्ट का लेआउट है, इसमें अगर आप देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का इंफ्रा रेडी है, यहाँ पे स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल सब रेडी है और लोगों को जो जरूरत में लगती है वो सारी चीजें हमने जो डिजाइन किया हुआ लेआउट है इसमें सारी आ रही है। प्लस हमारा इसमें हमने प्लान किया हुआ है रिटेल शॉपिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा आने वाले फ्यूचर में। और अपना ये प्रोजेक्ट अगर आप देखते हैं, ये प्रोजेक्ट बेसिकली स्टेशन से काफी नजदीक है। इसमें दोनों तरफ से आपको स्टेशंस में मिलेगा एंट्री एग्जिट। एक आपका चर्चगेट साइड में भी है और आपका विरार साइड में भी है। विरार साइड का इज ऑलरेडी 5 मिनट्स एंड चर्चगेट साइड एग्जिट इज हार्डली 2.5 किलोमीटर फ्रॉम द प्रोजेक्ट। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप प्रोजेक्ट में देखते हैं, हमने जिस तरीके से इंटरनल एम्यूनिटीज को प्लान किया हुआ है वो बहुत ही सोच समझ के किया है, क्योंकि आज वहां पे जिस तरीके का लग्जरी अपार्टमेंट हर कोई चाहता है मैं रहूं उसमें, तो हमने इंटरनल आपका बिल्डिंग का लॉबी से लेके आपका इंटरनल फ्लैट का एम्यूनिटीज तक हर एक चीज में उसका ध्यान रखा हुआ है। हमने डेकोरेटिव लॉबीज दी है, हमने आपकी लिफ्ट शिंडलर्स की प्लान की हुई है, हमने वहाँ पे फायर फाइटिंग, सीसीटीवी कैमराज, इन सारी चीज़ों की सुविधा वहाँ पे रखी हुई है। प्लस अगर आप इंटरनल फ्लैट के अंदर के आप एम्यूनिटीज देखते हैं तो हमारी जो बाथरूम्स की फिटिंग्स आपने देखी होगी, ये सब हमने बाथरूम्स की फिटिंग्स को जैगवार्स एंड कोलर्स की हम बाथरूम्स फिटिंग्स यूज करते हैं। हम लोग क्वालिटी टाइल्स यूज करते हैं, हम लोग क्वालिटी पेंट यूज करते हैं। हमारा इंटरनल एक्सटर्नल पेंट अगर आप देखते हो तो एक्सटर्नल पेंट हमारा काफी अच्छा है, जिसमें आपको कभी भी वाटर प्रूफिंग इस तरीके से प्लान किया हुआ है कि वहां पे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम लोग बहुत माइन्यूटली देखते हैं, जो बाकी लोग ये सोचते हैं कि नहीं प्रोजेक्ट बना दो, बट हम लोग इन सब छोटी छोटी चीजों को बहुत माइन्यूटली ध्यान रखते हैं, ताकि आज हमारे जितने बायर्स है वो बायर्स इसके लिए ही हमारे यहाँ पे वापस आके अपने कस्टमर्स, अपने दोस्तों को, अपने किसी को, फैमिलीज को वापस रेकमेंड इसके लिए करते हैं बिकॉज दे हैव सीन दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। हमने जो डिलीवर किया हुआ है प्रोजेक्ट्स, वहां पे लोग आज रह रहे हैं और वो बहुत खुश है। और जिस तरीके से आप देखते हो कि ये एम्यूनिटीज हमने बाहर प्लान की हुई है, आपका जो जिम है, हमने एक वहाँ पे एम्पी थिएटर प्लान किया है, सीनियर सिटीजन प्लान किया है, हमने बच्चों के लिए खेलने के लिए क्रिकेट नेट लगाए प्लान किया हुआ है, जॉगिंग ट्रैक प्लान किया हुआ है। ये एम्यूनिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज की डेट में काफी सारे लोग खाली बात करते हैं, कोई बनाते नहीं है। वी हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड इन आवर मास प्रोजेक्ट एंड दिस इज व्हाट वी हैव प्लान्ड इन आवर दिस प्रोजेक्ट। तो ये हम लोग आपको यहाँ पे देने वाली सुविधा है। और आपने ये लॉबी भी, इंटरनल लॉबी है, ये लॉबी में आपने देखा होगा द काइंड ऑफ स्पेस वी हैव शोन, जिस तरीके से वो हम लोग उसको ब्यूटीफाई करते हैं। और ये लॉबी को हम मेंटेनेंस फ्री लॉबी बनाते हैं, ताकि आगे जाके कभी भी सोसाइटीज को भी इस लॉबी का ये प्रॉब्लम ना है कि इसको हमको मेंटेन करना है तो कहीं ना कहीं बहुत सारा रिपेयरिंग करना है। वी डू अ हार्डस्केप डिजाइनिंग इनसाइड द लॉबी। प्लस हमने यहाँ पे जो बाकी सुविधाएं दी है, जिसमें सिक्योरिटी सिस्टम, सीसीटीवी, इंटरकॉम, फायर फाइटिंग, कन्वीनियंस स्टोर्स, पार्किंग, बायोमेट्रिक, हाउसकीपिंग, ये सारी सुविधा है हमने यहाँ पे रखी है, जो आज की डेट में सबसे जरूरी है। और एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए ये सारी सुविधाएं यहाँ पे हमने प्रोवाइड की हुई है। आप ये देख सकते हैं बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर हमने जिस तरीके से एक जॉगिंग ट्रैक और एक छोटा लैंडस्केप जैसा बनाया हुआ है। ये एक आज की डेट में एक बॉम्बे में रहने वाले लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक खुली आसमान में कहीं ना कहीं आप अच्छे से वॉक करो और आपको एक थोड़ी सी ऐसी जगह मिले जहाँ पे आप जाके अपना एक थोड़ा टाइम आप स्पेंड कर सके।
और जिसका एक अपना अलग ही मजा है। नाउ दिस इज व्हाट द फ्लोर प्लान इज। हमारा यहाँ पे हमने इनिशियली अभी प्लान किया है जिसमें ये 2 विंग हमने प्लान किए हैं, जिसमें आपका बी विंग और सी विंग है। और यहाँ सब हमने 1 और 2 BHK के अपार्टमेंट्स प्लान किए हैं। 1 और 2 BHK के अपार्टमेंट्स में मैंने आपको बताया जैसे कि 1 BHK का एरिया मेरा 446 से लेके 464 है, और 2 BHK का मेरा 10 633 से लेके 639 तक का 2 BHK का एरिया है। और इसमें हमने हर विंग में आपकी 2-2 लिफ्ट और 2-2 स्टेयरकेस है। और बिल्डिंग को इस तरीके से डिजाइन किया कि इसमें सारे बीच के फ्लैट्स है वो सब गार्डन फेसिंग के हैं, और बाहर वाले सारे फ्लैट्स आपको रोड फेसिंग के हैं। ये अपना 1 और 2 BHK का लेआउट है। अगर आप देखते हैं कि इसमें ये 2 BHK के लेआउट में कि आपका कोई भी फ्लैट्स में किधर भी जगह का ऐसा वेस्टेज एरिया नहीं है। इट इज 100% यूजेबल एरिया। आपको एक कॉमन टॉयलेट भी दिया और साथ साथ में एक अटैच टॉयलेट भी दिया हुआ है, और कपाट्स की स्पेस अलग से दी है, उसका हमने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। प्लस हर एक फ्लैट्स के रूम के साथ अगर आपने देखा होगा तो वहाँ एक बालकनी हमने दी हुई है, और ये बालकनी से इस घर के अंदर जो रहने का मजा है वो कुछ अलग ही है। आज बालकनी वाली चीज बॉम्बे में बहुत रेयर हो गई है, शायद ही कहीं मिलती है। और जहां आप अगर ऐसी जगह रह रहे हो वसई में जहां आपको हर रूम के साथ बालकनी मिले, आप लिविंग रूम में सुबह विंडो में बालकनी में खड़े हो तो अलग मजा आता है, बेडरूम में अलग मजा, किचन के साथ में एक ड्राई बालकनी दी हुई है। एंड ये अपना है 2 BHK का लेआउट। अगर आप 2 BHK में भी देखते हैं, 2 BHK का लिविंग रूम की साइज अगर आप देखते हैं, जिस तरीके का हमने साइज दिया हुआ है, जो बेडरूम्स के साइजेस आप देखते हैं, अगर आप किचन साइजेस देखते हैं, जो जो कारपेट हम लोग आज बोल रहे हैं वो कारपेट हम आपको दे रहे हैं। और यही कारपेट आज लोग मिस कर रहे हैं, जो लोगों ने आज से 4 साल पहले लोगों को मिलता था, जो आज हर जगह पे लोगों को कारपेट में कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है बहुत छोटा है करके। यहाँ आने के बाद लोगों को ये कभी फील नहीं आएगा कि घर में मुझे जो एरिया मिला है वो एरिया बहुत अच्छा एरिया मिला है। आपको आज अगर देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों को कहीं ना कहीं घर में रहने के लिए, और जहाँ पे फैमिली आती है तो उनके साथ साथ में हर कोई यही सोचता है कि गेस्ट आए तो गेस्ट के लिए भी बहुत अच्छी सी जगह हो और कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज कर सके। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट अभी हम लोग अगर देख रहे हैं तो ये प्राइस का आपने देखा होगा, कॉस्ट शीट्स आपके सामने है। यहाँ पे हमने जो प्लान किया हुआ है एंड ओनली हियर, ये एक स्पेशल प्राइसिंग आज के लिए, आज सब कस्टमर्स के लिए हमने प्लान की हुई है कि ये 34,66,000 हमारा 446 कारपेट का जो 1 BHK है, वो आज के लिए ही हमने इसमें एक स्पेशल डिस्काउंटिंग रखा हुआ है, दैट इज 2.25 lakhs इज द स्पेशल डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट के बाद ये आपका प्रॉपर्टी का कॉस्ट हो जाता है 32.42 lakhs। आज 32,42,42 हजार में आपको 446 का कारपेट वसई जैसे लोकेशन में प्लान्ड लेआउट में मिल रहा है। और हमारा दूसरा 1 BHK का एरिया है दैट इज 464 विच इज अ बिगर एरिया, जो 36.20 lakhs का है। उसके ऊपर आपको 2.33 का एक डिस्काउंट मिल रहा है, एंड दैट इज कमिंग टू ऑल पुट टुगेदर 33.87 में आपको आ रहा है। एंड 2 BHK इज 633 स्क्वायर फीट का 49.0903 lakhs का आपको 3,06,000 रुपए का उस पर डिस्काउंट आ रहा है, और वो आपको 45.97 lakhs में आ रहा है। अभी ये तो हो गया डिस्काउंट जो आपको आज आप अगर ले रहे हैं प्रॉप टाइगर्स के थ्रू आप आ रहे हैं तो आपको ये स्पेशल डिस्काउंट एक मिल चुका है। एंड ओवर एंड अबव इसके ऊपर हम लोगों ने आपको और एक स्पेशल चीज रखी हुई है, दैट इज द स्टैम्प ड्यूटी बेनिफिट।
जो स्टैम्प ड्यूटी आज गवर्नमेंट को हमको देनी होती है, और आज हमने देखा है कि यहाँ पे बायर्स जब भी आता है तभी बायर्स को एक आ, अपना ओन कंट्रीब्यूशन देना होता है, और ओन कंट्रीब्यूशन देने के बाद जब भी हम लोग बोलते हैं कि अभी आपको उसका स्टैम्प ड्यूटी भी पे करना है, फिर रजिस्ट्रेशन भी पे करना है, तो ये जो गवर्नमेंट चार्जेस है, तो बेसिकली बैंक आजकल ये बोलती है कि आपको एटलीस्ट तो 10% कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देना ही है। तो कस्टमर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि 10% कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे, साथ साथ में फिर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन। तो हमने उसमें आपके लिए आज स्पेशल एक ये रखा हुआ है कि आपको ये डिस्काउंट के साथ साथ में आपको ओवर एंड अबव स्टैम्प ड्यूटी भी आपको हम नहीं चार्ज करेंगे। स्टैम्प ड्यूटी आपको बिल्कुल नहीं देनी है, आपको सिर्फ 34.66 में से 2.25 माइनस होके 32.42 ये आपको मिल रहा है, एंड इसमें भी स्टैम्प ड्यूटी इंक्लूड की गई है। अभी ये तो हो गया 32.42 इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी वाला बात। दूसरा ये है कि आज अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपको आज के आज अगर एक हमको ईओआई अमाउंट, बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आज हमें कुछ 21,000 रुपए से लेके आपको 51,000 रुपए तक या जितना ज्यादा दे सकते हैं आप दे सकते हैं। 21,000 रुपए हम बेरे मिनिमम ले रहे हैं, जो 21,000 रुपए हमको आज देगा उनके लिए हमने ओवर एंड अबव 32.42 में और एक चीज रखे, दैट इज 99,000 रुपीज का ऑन द स्पॉट डिस्काउंट। तो आपको ये 32.42 लैक्स जो 1 BHK की कीमत है, ये कीमत आपकी सीधी हो जाएगी 31.42। तो आपको ओवर एंड अबव जो प्राइसिंग हमने अभी यहाँ दिखाई है, 1 BHK 464 33.87, 2 BHK का 633 का 45.97, इसमें ओवर एंड अबव 99,000 का डिस्काउंट और आपको आज के आज मिलेगा अगर आप 21,000 रुपए का ट्रांसफर करते हैं, जिसके लिए आपको हमारी जो बेसिकली सेल्स टीम है वो आपको पूरी बैंक डिटेल्स दे देगी, और उस बैंक डिटेल्स पे आप भेज सकते हैं, 21,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, और आपको ये 99 का एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल सकता है इस पे। और जिस तरीके का वसई ये लोकेशन है और जहां पे आप फर्स्ट टाइम आप परचेस करने आते हैं, तो यहाँ आप व्हेन यू कम एज अ फर्स्ट होम बायर, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे एक आपको बेनिफिट मिलता है, दैट इज पीएमआई बेनिफिट। और पीएमआई बेनिफिट भी आपको आपके साथ में यहाँ 2.67 तक का वो भी एक एक्स्ट्रा मिलता है। तो आप अगर देखते हैं कि आज वसई में एक घर लेने के बाद में आपको डेवलपर की तरफ से तो सुविधा मिल रही है, डिस्काउंट्स तो मिल रहा है, प्लस साथ साथ में गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको बहुत अच्छे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और ये बेनिफिट्स के कारण आज यहाँ पे जहाँ पे हम लोग ये अफोर्डेबल प्रॉपर्टी हम जिसको बोलते हैं, बट आप अगर देखते हो कि ऑर्नेट ने अफोर्डेबल चीज बनाई है, लेकिन अफोर्डेबल को हम लोग जिस तरीके से बनाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लग्जरी अफोर्डेबल, क्योंकि इस लोकेशन में आज जिस तरीके का प्रोडक्ट हम डिलीवर करना चाहते हैं और जो हमने ऑलरेडी पास्ट में किया है, उस प्रोडक्ट को हम लोग लग्जरी अफोर्डेबल बोलते हैं, क्योंकि आज लग्जरी भी कहीं पे भी मिलती नहीं है। लग्जरी इज कंसिडर्ड एज ऑलवेज एज एक्सपेंसिव, बट यहाँ हमने अफोर्डेबल लग्जरी प्रोडक्ट बनाया हुआ है। जहाँ आप घर में आते हैं, कॉम्प्लेक्स में आते हैं, तो आपको वो फील आता है, और यहाँ आपको वो फील एक बहुत ही अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है। Thank you, Mr. Weber. That was a very interesting presentation and seriously a very super saving scheme for all our viewers. It's time we pick some audience questions. My first question is this for Mamta Gorodia has asked, why should I choose Navi Vasai over Navi Mumbai or Thane? Mr. Sandeep, would you like to take that up? भी ऐसा है कि वेस्टर्न लाइन का अपना एक हमेशा से चार्म रहा है बम्बई में। हमेशा से लोग वेस्टर्न साइड में रहना ज्यादा प्रेफर किए हैं,
ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे अभी थाना, नवी मुंबई, ये लोग भी बहुत अच्छा डेवलप हुए हैं। तो जैसे आप उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वसई का आज थाना से भी हो या नवी मुंबई से हो, दोनों से टक्कर खाता है। आज वही अच्छे चौड़े रोड हो गए हैं, ट्रेन की कनेक्टिविटी है, मेट्रो का प्रोविजन है। फिर आज वहाँ की प्राइसेस कंपेयर करें तो वसई हाफ द प्राइस में मिलता है। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो घर ढूंढते रहते हैं, तो उनसे ऐसे बात होती रहती है, तो मैं उनको जब भी पूछता था कि क्यों आपको थाना ज्यादा अच्छा लगने लग गया था, पूरे सर थाना में बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, नवी मुंबई में बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में रहने का एक अलग मजा है। तो ये हमने रियलाइज किया ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि जो एक अट्रैक्शन या जो चार्म है वो एक कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस वो ये एक ऐसा चीज था जो एक मिसिंग पीस थी। तो अगर अब आप देखेंगे जो वसई का हमारा जो डेवलपमेंट है आज की डेट में, ये बहुत ही प्लान्ड और बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार कॉम्प्लेक्स बन के आ रहा है। तो आज की डेट में फ्रॉम अ इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ लिविंग स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एनी अदर एम्यूनिटी पर्सपेक्टिव, वसई नवी मुंबई हो या थाना हो, सबको टक्कर देता है। और प्राइस फंड में वसई इनसे आधा है। आज वसई का कारपेट एरिया 7,000 से 8,000 के बीच में है, और थाना बोलो, नवी मुंबई बोलो, 15 से 17,000 रुपया कारपेट। आज पनवेल में भी अपने से ज्यादा प्राइसेस है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई ये एक्चुअली क्या है, जैसे कोई नो ब्रेनर है कि आपको वसई चूज करना चाहिए कि आपको थाना चूज करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो वसई इज अ बेटर लोकेशन। Amit Neerchandani wants to know what is the booking value as of now and what will be the refund in case of any problem. Mr. Weber, would you like to take that up? या आज के डेट में आपको ऐसा है कि जो बुकिंग अमाउंट है इनिशियली आपको आज अगर आपको ये ईओआई फॉर्म्स अगर देना है तो इसके लिए आपको खाली 21,000 रुपीज ही आपको ट्रांसफर करने ऑनलाइन, दैट यू कैन डू इट। और अगर आपका आगे जाके कभी ऐसा मन होता है स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन होने से पहले कि आपको कहीं कैंसिल करना है, मे बी बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन आपको कैंसिल करना चाहते हो, आपका कहीं पे प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियल दिक्कतें आती है, तो आप हमें एक सिंपल हमारे CRM को एक मेल लिखते हैं जिसमें आपको कैंसिल करना है करके आप बोलते हैं, और हम आपके पैसे जो जितने आपने पे किए हैं वो आपको पूरे रिफंड हो जाएंगे 21,000 विद इन 7 days। Deepak Tiwari wants to know how is water supply in this project. Mr. Sunil, would you like to take that up? जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पहले वसई में पानी की बहुत सारी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वाटर सप्लाई का कनेक्शन बराबर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन अभी हर जगह पे वसई में पानी आ चुका है। VVMC ने नई पाइपलाइंस डाली है और हर प्रोजेक्ट में उन्होंने गारंटी दी है कि वो पानी देंगे। प्लस एक सूर्य डैम जो नया 3-4 साल पहले जो बना है, उसका भी जो पानी जो सप्लाई होने वाला है वो वसई विरार और मीरा भाईंदर को देने की कॉन्ट्रैक्ट भी इशू हो गया है। L&T को दिया गया है ये कॉन्ट्रैक्ट। बस एक छोटा सा कंट्रोवर्सी के कारण वो काम शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन ये आगे पीछे ये भी शुरू होना है, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि वसई विरार रीजन में 24 आवर्स पानी मिलेगा मुंबई की तरह। तो पानी की मुझे तो ऐसे नहीं लगती है कि कोई दिक्कत है फ्यूचर में, और ना रहने वाली है, क्योंकि एबंडेंट वाटर सप्लाई VVMC के पास है। Next question is from Ashish Singh. Is Vasai a safe area to invest in? Mr. Sandeep, would you like to take that up? कि मैंने जैसे पहले भी अभी मैंने बताया था कि वेस्टर्न रीजन में अफोर्डेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कन्वीनियंस, कॉस्मोपॉलिटन क्राउड, ये सब के लिए वसई से बेटर कोई लोकेशन नहीं है। डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी है, लोकल कॉरपोरेशन ने अपनी बसेस चालू कर दी हैं, ऑटो रिक्शा, शेयर ऑटो, ये सब अवेलेबल है, बहुत सारे फैक्ट्रीज अवेलेबल हैं। तो मेरे हिसाब से वसई फ्रॉम अ बाइंग पर्सपेक्टिव कोई इशू नहीं है। और आगे जाके आपने भेंदर का ग्रोथ देखा ही है। आज भेंदर के प्राइस के मुकाबले हम आपको हाफ द प्राइस में आपको घर मिल रहे हैं।
तो मुझे नहीं लगता है कि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर आप नेक्स्ट 5 साल में देखेंगे तो वसई में कोई चिंता की बात है। इनफैक्ट आज जितने भी एसेट क्लास है उसमें ये तो क्लियर हो गया कि भाई रियल एस्टेट से अच्छा कोई एसेट क्लास नहीं है, और मेरे हिसाब से तो भाई वसई से अच्छा डेस्टिनेशन है नहीं अपने वेस्टर्न लाइन में। Ashu Gorkande is asking, I'm a bachelor looking to buy a property in Vasai location. Can you tell me whether there's any subvention plan available in this project? Mr. Vaibhav, can you take that up? Yes, we have planned a subvention here, but the kind of subvention plan detail can be given to you or to the customers only on the site whenever they'll come to the site. And there is a team already we have, so they can be in touch with a team if individually somebody wants to go with the subvention or with the normal plan. So definitely we can offer them a choice in that. Okay, Achal Parolia is asking, how metro connectivity will impact Vasai property market? Mr. Sandeep, would you like to take that up? ये जो मेट्रो कनेक्टिविटी है ये बेसिकली एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी के तौर पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस मेट्रो कनेक्टिविटी इज ऑलरेडी इज देयर, तो एरियाज विच आर से करंटली विच आर नॉट डेवलपिंग, जो स्टेशन से शायद 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर हैं, उनके लिए आपको एक बहुत एडवांटेज होना शुरू हो जाएगा कि भाई ये एरियाज भी डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। जैसे आज आप मीरा रोड के अंदर में देखेंगे तो लोग हाईवे तक जाने लग गए हैं। पहले एक टाइम था कि भाई हाईवे तक की प्रॉपर्टी बहुत ही वीक मानी जाती थी, पर अब ऐसा नहीं है। तो जैसे ही मेट्रो आती है तो ये जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगी। तो ये जो आज जो आप देख रहे हैं कि भाई स्टेशन के आसपास आप प्रिफर्ड लोकेशंस हैं, उससे ज्यादा भी आज डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो मेट्रो विल ब्रिंग इन मोर डेवलपमेंट। सेकेंडली, जो स्टेशन के पास की लोकेशंस हैं वहां पे लोगों को एक डिजायरेबल, एक अफोर्डेबल और एक टाइम सेविंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी रेडीली अवेलेबल रहेगा, जिसमें आप ये बोल पाएंगे कि भाई हाँ भाई मैं 5 मिनट में स्टेशन पहुंचने वाला हूँ, मैं 5 मिनट में घर पहुंचने वाला हूँ, या हमको कहीं और जाना है तो हम मार्केट जाना है भाई हम 10 मिनट में मार्केट पहुंच जाएंगे। तो ये सब चीजें बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगी, तो एक लाइफस्टाइल भी बेटर होगी लोगों की। तो मेरे हिसाब से मेट्रो इंफ्रा ये हमेशा से ही उस जगह को और सिग्निफिकेंटली डेवलप करते जाती है। Saurabh is asking, is it safe time to buy now? Also, if I wait, can I expect better discounts and concessions? Mr. Sunil, would you like to take that up? मैंने हमेशा रियल स्टेट का जो साइकिल देखा है, एवरी 10 इयर्स के बाद एक बहुत अच्छी तेजी आती है। मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में रियल स्टेट का भाव ऑलमोस्ट वही चल रहा है या जो करेक्शन आना था वो आ चुका है। जिस तरीके का वैभव जी ने जो डिस्काउंट ऑफर किए हैं, अगर आप देखेंगे जिस तरीके का कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, जिस तरीके की एमिनिटीज दी जा रही है, तो हर चीज पे एक कॉस्ट आती है, और आप अगर कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे और सामने लैंड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मार्जिनली बहुत ज्यादा डिफरेंस रहा नहीं है। तो करेक्शन के चांसेस तो मुझे किधर भी नजर नहीं आ रहे हैं कि कोई इससे ज्यादा नीचे कोई चीज जा सकती है। ये जरूर बोल सकता हूं कि साल भर के अंदर अगर किसी ने ले लिया रियल स्टेट, वो बहुत लकी अपने आप को कहेगा अगले 10 सालों में। अगर वो चूक गया तो उसको ऐसा लगेगा कि मैंने वो मौका आया था हाथ से खो दिया। तो वसई क्योंकि डेवलपमेंट वाला जोन है और हमेशा डेवलप वाले जोन में ही प्राइस की ज्यादा एप्रिसिएशन होती है, तो घटने के तो चांसेस मुझे किधर भी नहीं लगते कि भाई इससे और बॉटम कभी जा सकता है। तो रियल स्टेट एक ऐसी चीज है, आप जब भी खरीदो इट इज अ राइट डिसीजन। तो वेट करना तो मुझे लगता है कि अगर आपने मन बना लिया है तो देर नहीं करनी चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। Thank you, sir. Vivek Tiwari wants to know, how quickly do you think will the sector adapt to this new normal post-COVID crisis?
Mr. Gautam, would you like to take that up? श्योर देखिए, अडेप्शन का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी चालू हो चुका है. अगर इसका सबसे छोटा एग्जांपल मैं दूं तो कोविड के पहले मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि हम लोग वेबिनार कर रहे होंगे जहां पे इतने सारे क्लाइंट्स आके अटेंड कर रहे होंगे, इतना प्रोएक्टिवली क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, उनको प्रेजेंटेशन दिया जा रहा होगा. वो प्रोसेस ऑलरेडी चालू हम लोग कर चुके हैं. ये जो आने वाला टाइम है इसमें बायर्स का जो नीड है वो काफी हद तक और रिफाइन हो जाएगा. जैसे थोड़ी देर पहले वैभव जी भी बोल रहे थे कि पहले जब कोई भी घर लेने जाता था तो जनरली यही देखता था कि जी स्टेशन से कितना दूर है, मैं कम्यूट कैसे करूंगा. इस लॉकडाउन के हालात में एक चीज और बहुत क्लियरली सामने आई है कि भाई कमर्शियल जो शॉप्स हैं, जो एक दैनिक आपकी जरूरतें हैं, उनका सामान कितना पास पड़ता है. तो ये सब चीजें डेवलपर्स भी अब धीरे धीरे, और इसको जो बिल्डिंग्स हैं जो अभी प्लान की जा रही हैं, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के बनाएंगे. और जो अभी तक हम देखते थे कि सारी चीजें फिजिकली होती थी कि फिजिकली साइट पे जाओ 4 बार, ये सब अब बहुत ज्यादा डिजिटल माध्यम से होने लगेगा. Thank you for the wonderful insights, everybody. Unfortunately, we are running out of time, so I would request our panelists to give their closing remarks, starting from Mr. Gupta. मैं ये जो प्रोजेक्ट के बारे में जो डिस्कशन जो हम लोग ने किया है, ये इतना अच्छा हुआ है कि मुझे भी काफी चीज जो मेरे कंपनी के जो मेरे कुलीग्स ने भी जो डिस्कशन में जो पार्टिसिपेट किया है, मुझे भी काफी अच्छा लगा कि इतनी सारी चीजें वसई में अलग अलग सोच ला सकती है. और जिस तरीके से गौतम जी ने बताया कि फ्यूचर जो कोविड की वजह से जो चेंज हो रहा है, जिस तरीके से नजरिया चेंज हो रहा है, शायद एज ए डेवलपर हमको बहुत चीज नई सोचनी पड़ेगी, जिसके लिए हमको हर जो प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं उसमें हम इनसे इनपुट लेके, कस्टमर से इनपुट लेके कोशिश करेंगे कि वो आगे के हम प्रोजेक्ट में जरूर डालें, और कोशिश करेंगे कि ये प्रोजेक्ट में भी जो बन सकता है वो जरूर करेंगे. थैंक Mr. Vaibhav. Your closing remarks, please, Mr. Vaibhav. या आज जो प्रोजेक्ट के बारे में आप सब लोगों ने देखा है, ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है. मेरा आपको एक ही ये है, आपको इस प्रोजेक्ट में अगर आज जिस तरीके का आपने सबने देखा और सुना है कि आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो आपका EOI का 21,000 रुपए का आपका अमाउंट आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रांसफर करें. और प्रॉप टाइगर की पूरी टीम आपके लिए, आपको हेल्प करने के लिए पूरा अवेलेबल है. और आपको और भी कोई अगर इसके बारे में डिटेल में डाउट कुछ भी चाहिए तो आप हमेशा उन लोगों के साथ बात कर सकते हैं. और आपको अगर ऑर्नेट के साथ में भी कुछ भी हेल्प चाहिए, बात करनी है, तो आप बिल्कुल मेरे साथ और मेरी टीम के साथ में भी बात कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. Mr. Sandeep, your closing remarks, please. बहुत अच्छा लगा मुझे. और जैसे अभी उन्होंने कहा कि भाई सेक्टर ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि आगे जाके ये सेक्टर और प्रोएक्टिव होगा और कस्टमर सेंट्रिक होगा. और मेरी सबसे गुजारिश है, सेफ रहिए, स्टे होम, टेक केयर. मुश्किल समय है, हर समय एक जैसा नहीं रहता है, समय बदलेगा, समय ठीक होगा, हम वापस पहले जैसी जिंदगी जिएंगे. यही सोच के यही मेरी शुभकामना है सबको. स्टे सेफ. Mr. Gautam, your closing remarks, please. श्योर. एक ही चीज जो सबसे ज्यादा आजकल सुनने में आती है, क्लाइंट्स भी पूछने लगे हैं कि अभी रेट गिरेगा. ये एक, मैं इस पे बहुत क्लैरिटी दे देना चाहता हूँ कि ये जो चीज रहती है कि रेट गिरेगा, ये एक मिथ है. और जब वो टाइम निकल जाता है उसके बाद आप जैसे लोग बैठ के सोचते हैं, अरे यार उस टाइम पे अगर मैंने घर ले लिया होता तो कहीं ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि आज रेट बढ़ गया है. And believe me when I say कि there is not so much of scope for a price cut or correction, क्योंकि आज की रेट में demand for home is more than what it was before COVID.
Thank you, panelists, for joining in. Thank you, viewers, for watching. Feel free to drop your queries on our social media channels. We'll see you soon in the next episode of our Project Talk series. Till then, take care. Goodbye.